नमस्कार, बेंगलुरु समाचार में आपका स्वागत है। आज बेंगलुरु एक बार फिर विश्व स्तर पर चमक रहा है। शहर के BIEC सेंटर में देश के तीसरे सबसे बड़े B2B ज्वेलरी शोकेस IIJS भारत तृतीय 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। 1100 से अधिक एग्जिबिटर्स और दुनिया भर से आए कारोबारियों के साथ ये इवेंट भारत को ज्वेलरी के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में पेश कर रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यानी BIEC में आज रौनकी का एक नया मंजर देखने को मिला। GJEPC द्वारा आयोजित IIJS भारत तृतीय के चौथे एडिशन का उद्घाटन कर्नाटक की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीमती गुंजन कृष्णा IAS ने किया। इस मौके पर उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने भारत की बढ़ती हुई ताकत का लोहा माना। इस बार का आयोजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य है। 3 बड़े हॉल्स में फैले 1900 से अधिक स्टॉल्स में देश के 40 से ज्यादा शहरों के एग्जिबिटर्स अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल खास ध्यान भारत के GI टैग्ड ज्वेलरी क्राफ्ट्स पर दिया गया है, जो हमारी विरासत को दुनिया के सामने लाता है। किरीट भंसाली, चेयरमैन GJEPC। भारत का जेम और ज्वेलरी उद्योग हमेशा से ही नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। मुश्किल समय के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट 2.28 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। IIJS भारत तृतीय हमारी इसी तरक्की और नए बाजार बनाने की रणनीति का प्रतीक है। अगले कुछ दिनों में यहाँ 40 देशों और 500 भारतीय शहरों से 15,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स के आने की उम्मीद है। लग्जरी प्रेमियों के लिए यहाँ द सिलेक्ट क्लब बनाया गया है, जहाँ वर्ल्ड क्लास कट्योर ज्वेलरी का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन की तैयारियों के लिए ये एग्जीबिशन एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाली है। ज्वेलरी उद्योग की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु समाचार के साथ। धन्यवाद। Strong momentum in domestic market. India's domestic jewelry market currently valued at around $85 billion. It is projected to grow to nearly $130 billion by 2030. Rising incomes, young and experiential population, and expanding consumer markets are transforming India into one of the most dynamic jewelry markets in the world. Jewelers Federation and trade associations nationwide in making these possible. IIJS Bharat Tritiya stands as a dynamic platform that drives business, mirrors our industry's resilience, and fulfills its evolving aspirations. I'm confident the next 3 days will forge lasting connections, robust deals, and fresh opportunities for all. And we always believe in having a teamwork. Past from this is the 4th edition of GJPC IIJS Tritiya Bharat, which is successfully running in Bangalore. And one of the beautiful venue what we have is BIEC, and I think this venue have given a heart to many people in the country. As we all know, we are going through the challenges time of the business. We can't deny that. But I always believe when unitedly we work together, we can overcome all the challenges. Which we say another gold is also going very high. Given all that, and of course the challenges that we are facing, we have the synthetic diamond that has come in, and that has also, changed the whole dynamics that we are looking at. Given all of that, we need to look at it that how we promote our gems and jewelries. India has so much to offer. If you go to, you would just go to from one city to another, or if you go from north to south and you go to different states, each state has got its unique jewelry and the names that they have, and it's beautiful. And I come from a very family which has, I have my roots in the north, and I'm married to somebody from Tamil Nadu. I'm working in Karnataka. I had earlier worked in Maharashtra. And I have my relatives who are from Sikh coming from Punjab. So I have, when our weddings happen, we get this jewelry, from all across India, and that is such a beautiful. So you see this polki on Kundan from the north part, and then you see the temple jewelry coming from our south, and you see ruby, they'll say Burmese ruby, my mother-in-law would always talk about the Burmese ruby and the kind of. So what we need to do is 2-3 things. One is, we should bring all of them together in a museum.
हमारी जो कंपनी है वो लक्ष्मी इंपीरियल्स है, जिसका जो नाम लक्ष्मी डायमंड्स के नाम से भी पहले था, तो हमने उसको कन्वर्ट करके लक्ष्मी इंपीरियल्स कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड बना दी कंपनी। तो बेसिकली हम लोग ये जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, क्लोज सेटिंग, जो 5000 ईयर ओल्ड लेगेसी है, जो ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन जो ज्वेलरी पास ऑन होती है, उस तरह का ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं। जिसके हमारा जो मेन मोटो है जो लक्ष्मी डायमंड का, उसका ये मोटो है कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है, साउथ का ट्रेडिशन जो क्लोज सेटिंग है, उस लेगेसी को वी हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड। सो यू नो नाउ देयर इज द यंगर जनरेशन, दे आर जस्ट they are just forgetting like our traditional jewelry and all that. So we just want to carry on this, and along with that we are catering that new as per the JNG's requirement jewelry also. But our main focus is to make the traditional jewelry. हम मनु भाई ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से आ रहे हैं। हम लास्ट 20 साल से IIGs में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेंगलोर हम 5 साल से आ रहे हैं। हमारा स्पेशली मोनोपोली है लाइट वेट ज्वेलरी एंटीक में, वो हमारा स्पेशल मोनोपोली है, और उसमें हम स्टोन के ऊपर और एंटीक बेस यानी पुराने सालों से जो जड़ाऊ चल रहा था उस हिसाब से हम लाइट वेट में हमने क्रिएशन किया हुआ है एंटीक में। और वेट हमारा है, स्टार्टिंग वेट है हमारा 25 ग्राम्स पेंडल बुट्टी, और बेंगल्स है 20 ग्राम 15 ग्राम का ब्रेसलेट आता है, उससे हमारा स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट होता है, और 250-300 ग्राम के हम सेट बनाते हैं।